السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں محمد انیس اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قانون کے دائرے میں احتجاج ہر کسی کا حق ہے، ریاست کا جھگڑا بلوچوں سے نہیں دہشت گرد تنظیموں سے ہے، ٹویٹر پر بیٹھ کر جنگ نہیں لڑی جاتی، کالعدم بلوچ تنظیموں کو بھارتی ایجنسی را سے فنڈنگ ہوتی ہے، ملک دشمن عناصر کی پاکستان کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے ٹیکس محصولات میں اضافہ ضروری ہے، امید ہے آئی ایم ایف سے اگلی قسط جلد مل جائے گی، انتخابات میں پرامن ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ ملک میں معاشی مشکلات کی بڑی وجہ سمگلنگ اور اشیاء کی غیر قانونی نقل و حمل ہے، چمن، تورخم، غلام خان چیک پوسٹوں سمیت بلوچستان کے سرحدی علاقوں پر نگرانی کا عمل مزید سخت کیا جائے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ٹریکنگ نظام کو بہتر بنایا جائے، جو اہلکار سمگلنگ میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ وزیر اعظم کی کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، کسانوں کا استحصال کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، ملک بھر میں یوریا کھاد کی کسانوں تک ترسیل کو آسان بنایا جائے، یوریا کھاد کی طلب اور رسد کی کڑی نگرانی کی جائے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ سینٹ میں افواج پاکستان اور دفاعی ایجنسیوں کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور، ملوث افراد کو سخت سزائیں دینے کی تجویز، سینیٹر بہرامند تنگی نے قرارداد پیش کی۔ صدر شی جن پنگ کا ترقی کا نظریہ عالمگیر ترقی ہے، سی پیک کے تحت بہت سے شعبوں میں کام ہو رہا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کانکنی، خصوصی اقتصادی زون، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون فروغ پا رہا ہے، پاکستان چین کے تعلقات سدا بہار رہے ہیں، وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کو انٹرویو۔ عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ، کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر، قومی اور صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے لیے 25,951 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، 22,711 منظور جبکہ 3,240 مسترد کیا گئے، الیکشن کمیشن۔ انتخابی شیڈیول سے پہلے حلقہ بندیوں سے متعلق حکم حتمی ہے، انتخابی شیڈیول کے بعد حلقہ بندیوں کے معاملے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں 13 دسمبر کا ہی نوٹیفیکیشن برقرار رہے گا، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ نئے سال کے آغاز پر اسرائیلی حملوں میں شدت، ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید، مجموعی تعداد 21,978 ہو گئی، 9,000 بچے اور 6,450 خواتین شامل، 7,000 سے زیادہ افراد لاپتہ، طبی نظام مکمل طور پر مفلوج، خوراک کا بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہو رہا ہے، اقوام متحدہ۔ دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں، اردن اور لبنان میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کا اسرائیل سے جارحیت روکنے اور جنگ بندی کا مطالبہ، نیو یارک میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔
غزہ کے لیے پاکستان سے 20 ٹن امدادی سامان کی تیسری کھیپ روانہ، سرجیکل اور طبی سامان، خشک کھانے کی اشیاء، بچوں کے لیے گفٹ بیگ اور حفظان صحت کے کٹس شامل۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی کا انسانی امداد اور جنگ بندی پر زور۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس میں 2210 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 64,661 پوائنٹس پر بند، 62 کروڑ 51 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار جن کی مالیت 18 ارب 52 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ ایران سے بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری، ستمبر سے اب تک تقریباً 3,45,000 غیر قانونی افغان باشندوں کو ملک بدر کیا گیا، بیشتر صوبوں میں رہائش اور ملازمت پر بھی پابندی۔ بھارت اور روس کے بڑھتے تعلقات، مغربی ممالک میں شدید تحفظات، بھارت اور روسی وزرائے خارجہ کے درمیان کرسمس کے موقع پر ملاقات، نئے عالمی نظام کے قیام پر اتفاق، بھارت کی صدر پوتن کے عالمی ڈیزائن کی توثیق، دونوں ممالک کا نئے ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار شروع کرنے کا بھی اعلان، یہ اعلان یوکرین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، برطانوی میڈیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، سال 2023 میں 120 کشمیری شہید، 41 بے گناہ دوران حراست شہید، 13 رہائشی مکانات تباہ، 107 زخمی، حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت 3,610 کشمیری گرفتار۔ مودی حکومت نے گزشتہ سال 14 کشمیری مسلم ملازمین کو برطرف کیا، 72 املاک جن میں زرعی اراضی، مکانات اور دکانیں شامل ہیں ضبط کیے گئے۔ بھارتی فوج فضائی حادثات میں سب سے آگے، 30 برس میں 534 چھوٹے بڑے حادثات، 152 بھارتی پائلٹس ہلاک ہوئے، زیادہ تر حادثات پائلٹ کی غفلت اور غیر معیاری مشینری کے باعث پیش آئے۔ دسمبر 2021 میں ہیلی کاپٹر حادثے میں جنرل بپن راوت سمیت 13 بھارتی فوجی آفیسرز ہلاک ہوئے تھے۔ جاپان میں خوفناک زلزلہ، ٹوکیو لرز اٹھا، ریکٹر سکیل پر شدت 7.4 ریکارڈ، کئی مکانات گر گئے، سڑکوں میں شگاف پڑ گئے۔ زلزلے کا مرکز اوشیکاوا کے علاقے نوتو میں 30 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ سڈنی میں آسٹریلوی وزیر اعظم اینٹنی البنیز کی جانب سے پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں تقریب، پاکستان کرکٹ ٹیم کے مثالی رویے کی تعریف، پاکستان نے اس دورے میں اچھی کرکٹ کھیلی ہے، امید ہے کہ سڈنی ٹیسٹ میں بھی اچھا مقابلہ ہوگا، آسٹریلوی وزیر اعظم۔ اور آسٹریلیا کے اوپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر کا ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان، T20 کرکٹ کھیلتا رہوں گا، چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ٹیم کو ضرورت پڑی تو دستیاب ہوں۔ ڈیوڈ وارنر پاکستان کے خلاف سڈنی ٹیسٹ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ گیزر کی سروس ہے ضروری کیونکہ زنگ آلود چادر یا خراب تھرموسٹیٹ گیس کے زائد استعمال بھاری گیس بل کی بڑی وجہ ہے۔ گیزر میں گیس سیور کون کا استعمال گیس کے ضیاع کو روکتا ہے، اس طرح آپ کا بل آتا ہے کم۔ سوئی ناردرن گیس، سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا۔
नाज़रीन, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कानून के दायरे में एहतजाज हर किसी का हक है। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं बल्कि दहशतगर्द तंजीमों से है। कलअदम बलोच तंजीमों को गैर मुल्की फंडिंग होती है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। उम्मीद है IMF से अगली केस जल्द मिल जाएगी। लाहौर में कारोबारी सहूलत मरकज के दौरे के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू की तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान में बलोचों से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन शरपसंद अनासर को मनमानियां करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और पाकिस्तानी अवाम हजारों जानों की कुर्बानियां दे चुके हैं। कालादम बलोच तंजीमों को भारतीय एजेंसी राह से फंडिंग होती है। दहशतगर्दी की नई लहर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं। हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। वजीर आजम ने कहा कि कारोबारी और मस्बत माशी सरगर्मियों के फरोग के लिए तमाम सूबों को साथ लेकर चलेंगे। वफाकी हुकूमत कारोबार के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। वजीर आजम ने वजीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कारोबार के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात काबिल तारीफ हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम कमिट करते हैं कि ये भी आपके साथ कोलैस कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इसी फैसिलिटेशन सेंटर में उनकी भी इंशाल्लाह रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको इंस्ट्रक्शंस हम पास अभी हो गई हैं और इसको एज अ रोल मॉडल रेप्लिकेट करें। 4-5 जगहों का ऑलरेडी आप लोगों का प्लान है। इट शुड गो टू सिंध ऑल्सो, टू KP ऑल्सो इंशाल्लाह और टू बलूचिस्तान ऑल्सो। वजीर आजम ने कहा कि IMF से किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है। आज़ादी इजहार राय पर कोई पाबंदी नहीं, पूरी तरह कोशां है कि इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन माहौल में हो। 8 फरवरी को वोट डालने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि लाहौर में कारोबारी सहूलत मरकज की तर्ज पर मुल्क के बाकी शहरों में इदारे तामीर करना मुल्क की मईशत के लिए सूदमंद साबित होगा। कारोबारी सहूलत मरकज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी बिरादरी को तमाम सहूलियात फराहम करना वफाक और सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और कारोबारी बिरादरी के बाहमी ताउन की बदौलत मुल्क इस वक्त माशी इस्तेहकाम और बहाली की राह पर गामजन है। दौरे में वज़ीर आज़म को सहूलत मरकज के मुख्तलिफ अमूर और अब की पेशरफ्त के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने इदारे के मुख्तलिफ हिस्से देखे और उनसे मुतालिक मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने सूबे में कारोबारी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब की ज़ेर क़यादत कारोबारी सहूलत मरकज के किरदार को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग और अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल है। चमन, तुरखम, गुलाम खान चेक पोस्टों समेत बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों पर निगरानी का अमल मजीद सख्त किया जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से ट्रैकिंग के निज़ाम को बेहतर और फूल प्रूफ बनाने के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएँ। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम के हवाले से फौरी तौर पर हिकमत अमली तैयार की जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो भी एहलकार स्मगलिंग में मुलव्विस पाया जाए उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को हिदायत की कि स्मगलिंग की रोकथाम में गफलत बरतने पर ज़िला चागी की तमाम इंतजामी मशीनरी को तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कार्गो की चेकिंग में बेहतरी लाई जाए और चमन बॉर्डर पर कस्टम्स का अमला बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को कारोबार और रोज़गार की फराहमी के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर तहकीकात करने वाली इंक्वायरी कमेटी ने जारी तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को बताया कि हुकूमती इक़दाम की वजह से ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में खातिर कमी आई। तफ्तान से कोयटा तक कार्गो की ट्रैकिंग का निज़ाम शुरू किया गया है। वज़ीर आज़म ने कमेटी को ईमानदारी से अपनी सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की और कमेटी की अब तक की कारकर्दगी को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुल्क भर में यूरिया खाद की किसानों तक तरसील को आसान और सहल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से किसानों का इस्तेहसाल करने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मुल्क में यूरिया की खाद की दस्तियाबी के हवाले से अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में यूरिया खाद ज़रूरत के मुताबिक दस्तियाब है। उन्होंने हिदायत की कि यूरिया खाद की तलब और रसद की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि मुतल्लिका वफाकी वज़ारतें सूबाई हुकूमतों को यूरिया खाद की पैदावार और रसद के अदाद शुमार फराहम करके खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए कार्रवाइयों में मुआवनत करें।
इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि बफर स्टॉक के लिए 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया दरामद की जा रही है। सेनेट ने अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ करारदाद मुतफक्का तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसील क्या है बताएंगे मलिक उमर। अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसियों के बारे में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ करारदाद में कहा गया है कि मुल्क की दिफा खास तौर पर मुखालिफ हमसाए के तनाजुर में मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियां नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह अफवाज और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। करारदाद सेनेटर बैरमन तंगी ने पेश की। तालीमी इदारों में मंशियात और तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के बारे में करारदाद भी ऐवान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी ने पेश की। सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी की तहरीक पर तालीम और पेशावराना तरबियत के निगरान वजीर मदद अली सिंधी ने कहा कि वज़ीर आज़म के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत नेपटेक इदारा पूरे मुल्क में काम कर रहा है। बलोचिस्तान में इस साल 9,856 नौजवानों और 9,210 लड़कियों को 3 और 6 माह के मुख्तलिफ हुनरमंदी के प्रोग्राम्स में तरबियत दी गई है। सेनेटर मोहम्मद ताहिर बेजंजो की तहरीक पर मनसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के निगरान वजीर समी सईद ने कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गुज़िश्ता चंद सालों से PSDP के मनसूबे में बलोचिस्तान का दूसरे सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हिस्सा है। CPEC मनसूबों में सबसे ज़्यादा तवज्जो गवादर पर दी जा रही है। इजलास में बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के मसले पर सेनेटर खान ने कहा कि इसका पायदार हल तलाश करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल समेत 10 दूसरे बिल मुत्तलका कायमा कमेटियों को भेज दिए गए। सेनेट का इजलास मंगल की सुबह 10:30 तक मुलतवी कर दिया गया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इत्तलात और नशरियात के निगरान विफाकी वजीर मुर्तज़ा सुरंगी ने कहा कि CPEC के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी, खुसूसी इक्तिसादी जोन, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान विफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद से चीन की कंपनीज और सरमायाकारों के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान अफरादी कुव्वत, खाम तेल और मकामी मार्केट की वजह से चीनी सनतों की मुंतकिली के लिए मौजूद तरीन मुल्क है। उन्होंने कहा कि चीनी सरमायाकार काबिल तजदीद तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारियों के शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। निगरान वज़ीर ने हुकूमत की जानिब से सरमायाकारों को हर तरह के ताउन की पेशकश की। उन्होंने वफ़द को बताया कि SIFC के तहत 1 विंडो सरमायाकारी की सहूलत के बायस सरमायाकारों के मसाइल तेजी से हल हो रहे हैं। बुलेटिन में आप बात करेंगे इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। तो इंतखाबात के तीसरे मरहले का आगाज हो गया है। कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ बुध तक हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकती हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसले करेंगे। रिटर्निंग अफसरान 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को जारी होंगे। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली की है, जिसके तहत खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की तफसील जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 22,711 कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जबकि 3,240 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। लाहौर में भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक जनरल नशिस्तों पर लाहौर के कौमी असम्बली के 14 हल्कों में 336 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जबकि सूबाई असम्बली के 30 हल्कों से 1047 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए हैं। इंतखाबात 2024 के हवाले से कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने के पहले रोज रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ मजमूई तौर पर 20 उम्मीदवारों ने अपीलें दायर की हैं। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादिम तिनो और जस्टिस अदनानुल करीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच अपीलों की समाअत करेगा।
हल्का NA 198 से 210 और सूबाई असेंबली के हल्का 1 से 14 तक के लिए हाई कोर्ट सक्खर में बेंच कायम किया गया है। जस्टिस सैयद इरशाद अली शाह और जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में समाअत करेंगे। उधर पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। अब तक 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। कोयटा में भी कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर की जा रही हैं। अब तक 45 उम्मीदवारों की तरफ से दरखास्तें एपलेट पैनल के सामने जमा करवाई जा चुकी हैं। बलोचिस्तान से कौमी असेंबली के 539 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर जबकि 92 के मुस्तरद हुए हैं। बलोचिस्तान सूबाई असेंबली के लिए 1402 कागजात मंजूर जबकि 386 मुस्तरद हुए हैं। इतलात और नशियात के निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि CPEC के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी, खुसूसी इक्तिसादी जोन, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन फरोग पा रहा है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात सदा बहार रहे हैं। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। इत्तलाआत और नशरियात के निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग का तरक्की का नजरिया आलमगीर तरक्की पर मबनी है। वक्त के साथ आलमगीरियत पर मबनी नजरिया मजीद फरोग पा रहा है। सदर शी जिनपिंग का जो तरक्की का नजरिया है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उसकी कबूलियत हो रही है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ चीन का ताउन जारी है। हमारे खिते में भी जुनूबी मशरकी एशिया में भी आप देख रहे हैं, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे दूसरे ममालिक हो, नेपाल हो, उनके अंदर ये जो नजरिया है तरक्की का जो कि आलमगीरियत पर मबनी है, वो फरोग पा रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की दुनिया कदर कर रही है। वस्ती एशियाई मुल्क पहले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों पर अमल कर रहे हैं और इस मंसूबे से चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुलती जा रही हैं। जब CPEC शुरू हुआ तो ज्यादा तवज्जो थी तवानाई के मंसूबों पे और जो बुनियादी ढांचे के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मंसूबे थे, लेकिन अभी आप देखें कि बहुत सारे नए शोबों में काम हो रहा है। उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, उसमें माइनिंग भी है, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं, उसमें ज़राअत भी है, ज़राअत की बुनियाद पे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो भी है, सयाहत भी है। निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, CPEC के तहत मकामी लोगों की जिंदगियों पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान ताल्लुकात में वसअत आ रही है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI के 4 साल दौरे हुकूमत में मईशत तबाह हुई। हमने गुज़िश्ता 15 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। डेरा इस्माइल खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI मुल्क की दिफा और सलामती के लिए खतरा है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी सिर्फ PTI के मुस्तरद नहीं हुए बल्कि दूसरे उम्मीदवारों के भी मुस्तरद हुए हैं। इस मौके पर साबिक MPA आगा खान गंडापुर ने जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तकदीर बदलने का अहम मौका है। आवाम मुल्क की तरक्की के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख करें। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साबिक अदवार मुआशी तरक्की से इबारत हैं। अवाम की ताकत से मुंतखब होकर एक मरतबा फिर अवामी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि गुज़िश्ता इत्तेहादी हुकूमत वतन अजीज़ को दिवालिया होने से बचाया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुज्तबा शुजाउर रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि अवाम अब मुल्क की बागडोर किसी अनाड़ी के बजाय अहल अफराद को सौंपेंगे ताकि इनके मसाइल हल हो सकें। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि हमारी सियासत बलोचिस्तान और अवाम के हुकूक की सियासत है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सूबे के अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। जमहूरियत से ही इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल होता है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। ANP के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद अवाम के बुनियादी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। मर्दान में तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की यकसा तरक्की हमारा विजन है। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुआशरे में बर्दाश्त और रवादारी जैसे रवैयों को फ़रोग़ देना होगा। हमें अदम बर्दाश्त के कल्चर के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम उठाना होंगे। उन्होंने कहा कि हम सूबे को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी शेड्यूल से कबल हल्का बंदियों से मुतल्लिक हुक्म हतमी है। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों के मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने NA 165 बहावलपुर की हल्का बंदी के खिलाफ लीगी उम्मीदवार सऊद मजीद की दरख्वास्त की समाअत इंतखाबात के बाद के लिए मुलतवी कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 15 दिसंबर के बाद फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल लॉ ने अदालत को बताया कि हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हो चुकी थी। और सुप्रीम कोर्ट अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली से मुतालिक मामले की समाअत कल करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल कायम किया गया है। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर की। ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल अपील पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद से 116 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर जबकि 93 के मुस्तरद किए गए हैं। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कितने मर्द खवातीन वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, इस हवाले से सईद वजीर की ये रिपोर्ट देखते हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में मुल्क के तीसरे बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले इंतखाबात में 2,19,28,119 शहरी अपने वोट इस्तेमाल करेंगे। सूबे में 1,44,44,397 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 99,83,722 खवातीन वोटर्स हैं। सूबे में मर्द वोटर्स की शरह 54.47 और खवातीन वोटर्स की शरह 45.53 है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मजमूई वोटर्स की तादाद 21,07,692 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 11,65,411 और खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 9,42,281 है। पेशावर में 5 कौमी असम्बली की और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए मर्द वोटर्स की शरह 55.29 और खवातीन वोटर्स की शरह 44.71 है। इसी तरह मर्दान की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए मजमूई वोटर्स की तादाद 15,38,078 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 8,41,696 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6,96,382 है। मर्दान में मर्द वोटर्स की शरह 54.72 है और खवातीन वोटर्स की शरह 45.28 है। स्वात की 3 नशिस्तों के लिए मजमूई वोटर्स की तादाद 14,77,872 है, जिसमें 8,04,311 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 6,73,561 खवातीन वोटर्स हैं। सईद वजीर, PTV न्यूज। नए साल के आगाज पर भी गजा पर इसराइल की वहशना बमबारी जारी है। साल 2023 में फलस्तीनियों को बदतरीन मजालिम का सामना करना पड़ा। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में साल 2023 के दौरान इसराइली बर्बरियत में मजमूई तौर पर 21,978 फलस्तीनी शहीद हुए। शुहदा में तकरीबन 9,000 बच्चे और 6,450 खवातीन शामिल हैं। गजा की पट्टी में 7,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिनके मलबे तले दबकर जाँ बहक होने का खदशा है। फलस्तीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 319 अफराद शहीद हो चुके हैं। इस वक्त 7,800 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली जेलों में कैद हैं। इंतजामी हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद भी 2,800 से ज्यादा बताई जा रही है। गजा में संगीन इंसानी बहरान बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में खुराक का बहरान हर गुजरते दिन के साथ बदतर होता जा रहा है और इस वजह से वहाँ नाकाफी इमदाद का पहुँचना है। गजा में लगभग हर फर्द को भूख का सामना है। इसराइली जहरियत से गजा का तिब्बी निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है।
दूसरी जानिब दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। उर्दन की दारुल-हुकूमत उम्मान और लबनान की दारुल-हुकूमत बेरूत में हज़ारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन ने इसराइल से जारहियत रोकने और जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में भी फलस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गजा के लिए 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना कर दी है। इमदादी सामान पाक फ़ज़ाइया की खुसूसी परवाज़ के जरिए नूर खान एयरबेस से रवाना किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद रबी, चेयरमैन NDMA और मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने तकरीब से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत का अदा किया और गजा में शहरियों बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ इसराइल की जानिब से अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत की। जलील अब्बास जिलानी ने गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। खुसूसी परवाज इमदादी सामान लेकर मिस्र के शहर अल अरीश पहुंचेगी, जहां से सामान गजा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तीसरी इमदादी खेप तकरीबन 20 टन जरूरी अशिया पर मुश्तमिल है, जिसमें गजा में जमीनी जरूरियात के मुताबिक सर्जिकल और तिब्बी सामान, खुश खाने की अशिया और बच्चों के लिए गिफ्ट बैग्स के अलावा हिफ्जान सेहत की किट्स शामिल हैं। और अब आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानिए और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। नुमाइंदे खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि फ़लस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप मिस्र रवाना की गई है। ये इमदाद हिलाल अहमर के जरिए गजा पहुंचाई जाएगी। वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर गजा की इमदाद बढ़ाई जा रही है। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। नाज़रीन, साल 2024 के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बहुत अच्छी खबर, 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद खान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के आगाज से ही तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स ने बुलंद सतह पर ट्रेड किया। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम और निगरां हुकूमत की मस्बत मुआशी पॉलिसियों के बाइस सरमायाकार अब मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट में आइंदा भी इस्तेहकाम जारी रहेगा। इलेक्शंस के बाद भी ये स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि मार्केट जो है ये रुकने का नाम लेगी, क्योंकि फंडामेंटली अभी भी बहुत गुंजाइश है। 4 प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे है और हिस्टोरिकली हमारी 8 और 10 के 8 to 10 की पी पे हमारी मार्केट ट्रेड की है। इंपोर्ट्स को रिड्यूस करें 2024 में और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट को हम इसी तरह बढ़ा सकते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे ज्यादा काम करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे काम करें। स्टॉक मार्केट में 62 करोड़ 51 लाख से ज्यादा शेयर से कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 18 अरब 52 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 377 कंपनियों के दरमियान लेन देन का कारोबार हुआ, जिनमें से 326 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 36 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 15 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और एक अच्छी खबर ये भी कि रेलवे की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रेलवे ने 6 माह में 41 अरब रुपए कमा लिए। पिछले साल इसी अरसे में ये आमदन 28 अरब रुपए थी। CEO रेलवे आमिर बलोच का कहना है कि दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल से रिकॉर्ड आमदन का हुसूल मुमकिन हुआ। ML1 के आगाज से मामलात मजीद बेहतर हो जाएंगे। आमिर बलोच का मजीद कहना था कि इस साल सर्विसेज में मजीद बेहतरी लाएंगे और सफरी सहूलियात में भी इजाफा करेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज 1199 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,55,645 हो चुकी है। अफगान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आर्जी कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां रिहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं।
नाज़रीन, खित्ते के दीगर ममालिक भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से तंग आने के बाद उन्हें वापस भेजने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफगान बाशिंदों की मेज़बानी कर रहा है, ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की बढ़ती मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान को इनको वापस भेजना पड़ा। ईरान की जानिब से भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में ईरान और पाकिस्तान ने तकरीबन 8,50,000 गैर दस्तावेजी अफगान शहरियों को अफगानिस्तान वापस भिजवाया। रेडियो फ्री यूरोप की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मुल्क में लाखों अफगान महाजिरीन और तारकिन वतन पर मुल्क के निस्फ से ज़्यादा सूबों में रहने, सफ़र करने या मुलाजमत की तलाश पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान शहरियों ने गुज़िश्ता साल 1 दर्जन से ज़्यादा खुदकुश बम धमाके किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजने पर मजबूर हुआ। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जहान अचकज़ई ने कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 500 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने कहा कि कौम वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश करती है। जान अचकज़ई ने कहा कि अब तक 5 लाख से ज़ायद गैर कानूनी अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में फौजी चौकी पर अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले नायक अब्दुल रऊफ शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नायक अब्दुल रऊफ शहीद की उम्र 31 साल थी और वो रहीम यार खान के रिहायशी थे। नायक अब्दुल रऊफ शहीद ने सुगवारान में वालिदैन, बहन, अहलिया और एक बेटा छोड़ा। नमाज जनाजा में शहीद के अहल खाना, अजीज़ व अकारिब, पाक फौज के अफसर, अबायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान के दिफा की खातिर पाकिस्तान आर्मी के अनगिनत जवान अपने खून की कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। ऐसा ही एक बहादुर जवान जिला खानेवाल का नायस नाइक सगीर अहमद है, जिसने दिफाई वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। लांस नाइक सगीर अहमद शहीद के वरसा ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि सगीर अहमद को बचपन से ही पढ़ने और फौज में भर्ती होने का शौक था। मेरा बेटा सी स्कूल पाया, पढ़ने पाया, पढ़ता रहा। फिर ਜਦੋਂ तलीम हासिल की फौज भर्ती हो गया। उस तो बाद फिर ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ मेरी बहुत खिदमत करता सी, बहुत प्यार करता सी, मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करता सां। उस तो बाद फिर ਉਹਨੂੰ शौक सी फौज जाण दा, फिर फौज चले गए। ਉਹਦੀ शहादत ਤੇ बहुत फकर है, बहुत मेरा दिल ਜਿਹੜਾ ना ਵੱਡਾ हो जाता। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ मैं ना, ਜਦੋਂ आया मेरा दिल बहुत ਵੱਡਾ सी। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अदा किया। और मुझे उनकी बहुत याद आती है और मेरे बच्चों को भी उनकी बहुत कमी महसूस होती है। उनकी शहादत पर बहुत फ़ख्र है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मैं उनकी अच्छे से तरबियत करना चाहती हूँ। मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान की खिदमत करेगा। मेरे बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनके साथ बहुत प्यार करती थी और मेरे बाबा मेरे लिए खिलौने वगैरह लेके आते थे। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगी। मैं लांस नाइक शहीद सगीर अहमद का भाई हूँ। हम स्कूल में इस तरह लगते थे जैसा कि जुड़वा भाई हैं। हमारा क्रिकेट का हमें बड़ा शौक़ था, इकट्ठे खेलना। भाई मुझसे आर्मी में 2 साल पहले गए हैं, आप भी आर्मी ज्वाइन करें, आर्मी में ये चीज़ें हैं। फिर मुझे गाइडलाइन दी उन्होंने, फिर मैं भी आर्मी में गया। मुझे कॉल आई कि आपके भाई DI खान में उनको गोली लगी है, वो शहीद हुए हैं। जब भाई की बॉडी हमने देखी है कि वो जिस तरह शहीद का चेहरा रोशन होता है, वो देख के ना हमारे अंदर एक जोश आ गया कि भाई ने वतन, अब मट्टी, मुल्क और ये अपने झंडे की खातिर अपनी जान दी है। ये हर फौजी, हर सिपाही, हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करे, लेकिन अल्लाह पाक ये सादत किसी किसी को अता फरमाते हैं। भाई की कमी तो पूरी नहीं हो सकती। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक ने अगर जान कुर्बान करनी पड़ी तो मैं अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करूँगा।
पाकिस्तान और भारत के माबैन एक दूसरे की तहवील में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में 231 भारतीय कैदियों की फहरिस्त हवाले की, जिनमें 47 सिविलियन कैदी और 184 माहीगीर शामिल हैं, जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के अफसर के हवाले की गई फहरिस्त के मुताबिक भारत की जेलों में कुल 418 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें 337 शहरी कैदी और 81 माहीगीर हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि सजा मुकम्मल करने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरी कैदियों और माहीगीरों को रिहा करे, जबकि 1965 और 1971 की जंगों के लापता दिफाई एहलकारों को कौंसलर रसाई देने और 77 सिविल कैदियों तक खुसूसी कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भी की गई। पाकिस्तान और भारत 2008 के कौंसलर रसाई के मुआहदे के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे की तहवील में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का भी तबादला किया गया। जौहरी तनसीबात के हवाले से मुआहदा 27 जनवरी 1991 को नाफिज हुआ था। भारत और रूस के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात ने मगरबी ममालिक को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने कहा है कि क्रिसमस के मौके पर मुलाकात में भारतीय और रूसी वज़राए खारजा में गैर मामूली डील हुई। दोनों ममालिक ने नए आलमी निज़ाम के क़याम पर इत्तेफाक किया और खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। भारत ने रूसी सदर पुतिन के आलमी मंसूबे की तौसीक भी की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से मगरिब के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ताहम साथ खड़े भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के कान पर जूं तक न रेंगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया है। ये ऐलान यूक्रेन के लिए शदीद खतरे की घंटी है। बरतानवी मीडिया ने कहा है कि रूस को भारत की शक्ल में यूक्रेन के खिलाफ जंग में नया हामी मिल चुका है। भारत यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ खड़ा हुआ है, जो कि किसी सूरत भी न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। भारत और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए मुज़ाकरात का आगाज कर चुके हैं, जो कि यूक्रेन के मामले पर मगरिब के बयानिए की नफी है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरस की तरह 2023 में भी मजलूम अवाम पर भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी रहा। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 4 ख़वातीन समेत 120 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इनमें से 41 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों हिरासत के दौरान शहीद किया गया। भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने गुज़श्ता साल 13 रिहायशी मकानों को भी तबाह किया। घरों पर छापों और मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत 3610 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4013 कश्मीरी काले कवानीन गिरहत कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद हैं। बीजेपी हुकूमत ने गुज़श्ता साल 14 कश्मीरी मुस्लिम मुलाज़मीन को बरतरफ कर दिया। इस दौरान 72 अमलाक, जिनमें ज़राई अराज़ी, मकानात और दुकानें शामिल हैं, जब्त की गई। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में मरहूम कश्मीरी दानिशवर प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल को उनकी खिदमात पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ताज़ियती मजलिस मुनक़िद की गई। शुरका ने कहा कि प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल एक निडर रहनुमा थे, जिन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की जानिब से एक और कश्मीरी सियासी जमात पर पाबंदी की पाकिस्तान ने मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को 5 साल की मुद्दत के लिए गैर कानूनी तंजीम करार देने के भारतीय हुकाम के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी कश्मीरी अवाम को महकूम बनाने, इख्तिलाफ राय को दबाने और मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने की भारतीय मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम जमहूरी उसूलों और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, भारतीय फौज फ़ज़ाई हादसात में सबसे आगे है। गुज़श्ता 30 बरस से भारतीय फ़ज़ाइया 534 छोटे बड़े हादसात का शिकार हुई, जिनमें 152 भारतीय पायलट्स हलाक हुए हैं। गुज़श्ता 5 साल के दौरान 45 फ़ज़ाई हादसात रूनुमा हुए, जिनमें 42 भारतीय फौजी हलाक हुए। ज़्यादातर हादसात पायलट की गफलत और गैर बियारी मशीनरी के बायस पेश आए। 2012 में भारतीय वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट को बताया कि भारत MiG-21 बेड़े के निस्फ से ज़्यादा जहाज़ों को हादसात में खो चुका है। सिर्फ 2021 में 5 MiG-21 हादसे का शिकार हुए। दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें जनरल बिपिन रावत समेत 13 भारतीय फौजी अफसरान हलाक हुए थे। वस्ती जापान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जापान की सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। इस ज़लज़ले के नतीजे में कई मकानात गिर गए और सड़कों पर शिगाफ पड़ गए। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई है।
बाद साहिली इलाकों से 1 मीटर बुलंद लहरें टकराईं, लेकिन बाद में सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अशिकावा के इलाके नोतो में 30 किलोमीटर गहराई में था। तर्जुमान जापान हुकूमत का कहना है कि इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अमरीकी फोर्सेस ने बहेरा अहमर में यमन के हौसी ग्रुप की 3 कश्तियों को निशाना बनाया है। हौसी फौज के तर्जुमान जाहिया सारिया ने तस्दीक किया है कि हमले में हौसी बहरिया के 10 एहलकार मारे गए हैं। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हौसी जंगजुओं ने एक बहरी जहाज अगवा करने की कोशिश की। हंगामी कॉल मौसूल होने के बाद अमरीकी नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने हौसी ग्रुप की 3 कश्तियों को निशाना बनाकर समंदर बुर्द कर दिया, जबकि चौथी बच निकली। रुख करेंगे कौमी खबरों का। यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा। वज़ीर आला पंजाब ने अपग्रेडेशन के बाद सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी इफ्तिताह किया और इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और उनकी टीम को मुबारकबाद दी और साइलिन के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के इकदाम को सराहा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंसेस बनवाने की फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा है कि दिसंबर 2023 के दौरान सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 21.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूली की है। दिसंबर 2023 में रेवेन्यू की वसूली में 22% इजाफा हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के दौरान 80.2 अरब रुपए के महसूलात जमा हुए थे। SRB ने मुश्किल माशी हालात में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। निगरान वफाकी वज़ीर सकाफत जमाल शाह ने शाला रिता इस्लामाबाद की गारों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस काम में आसार कदीमा की खुदाई, निकासी आब के कामों की तामीर के साथ साथ सॉफ्ट एंड हार्ड लैंडस्केपिंग शामिल है। उन्होंने महकमे आसार कदीमा को मस्जिद और मुकर्रब खान मकबरे को असल शक्ल में बहाल करने के साथ साथ उसके मंजरनामे को बेहतर करने के लिए काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत की। सेनेट की फंक्शनल कमेटी मुंतकिली ने नौजवानों में मस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए मौके पैदा करने पर जोर दिया है। चेयरमैन सेनेटर मुश्ताक अहमद की सदारत में कमेटी ने कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर जोर देते हुए स्पोर्ट्स के मामले पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। माली साल 2023 में विफाकी टैक्स मोहतसिब ने 96% शिकायत का इजाला किया। लाहौर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विफाकी टैक्स मोहतसिब के हुकाम ने कहा कि गुज़श्ता साल इदारे को 8076 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जबकि 8176 दरखास्तों को निपटाया गया। उन्होंने कहा कि एक बरस में 10 अरब रुपए शहरियों को रिफंड करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बद इंतजामी के मुर्तकिब 13 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और नाज़रीन, पटियाला घराने के नामवर मूसीकार और गायक उस्ताद अख्तर हुसैन खान की आज बरसी मनाई गई। उस्ताद अख्तर हुसैन खान 1896 में पैदा हुए और 1974 में जहान फ़ानी से कूच कर गए। उस्ताद अख्तर हुसैन खान एक बाकमाल गायक थे। उनको लाहौर में मोमिनपुरा कब्रिस्तान में दफन किया गया है। खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली इलाका जात और शिमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मॉग छाई रहेगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मॉग छाए रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, गिलगित -6, गोपस और कालाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 7, कराची 14, पेशावर 3, जबकि कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की जानिब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में सिडनी में तकरीब का एहतमाम किया गया।
तकरीब में दोनों टीमों के अलावा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम भी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों टीमों को खुशामदीद कहा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिसाली रवैये की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने इस दौरे में अच्छी क्रिकेट खेली है। उम्मीद है सिडनी टेस्ट में भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिडनी में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने तमाम शोबों पर तवज्जो दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सिडनी में रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए डेविड वार्नर ने कहा कि वो T20 फॉर्मेट में टीम के लिए दस्तयाब होंगे। वार्नर ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दरवाजे खुले रखते हुए कहा कि टीम को जरूरत पड़ी तो मैं दस्तयाब हूं। डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। वो सिडनी में 3 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। 2009 में वनडे करियर का आगाज करने वाले डेविड वार्नर ने 161 एक रोजा मैचेस में 6,932 रन बनाए, जिसमें 22 सेंचुरियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मीर तारिक हुसैन बुगटी ने बैनुल-सूबाई राब्ता के निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान हॉकी टीम की ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट में शिरकत के लिए इंतजामात और खिलाड़ियों की तरबियत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फवाद हसन फवाद ने कहा कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, खिलाड़ियों के मसाइल हल करते हुए उन्हें बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा का मकबूल टेप बॉल क्रिकेट इवेंट कलीवाल ज़ल्मी लीग सीजन 3 का टाइटल खैबर टाइगर्स की टीम ने जीत लिया। कबल ग्राउंड सवात में खेले गए फाइनल में खैबर टाइगर्स ने बन्नू बुल्स को शिकस्त दी। बन्नू बुल्स, खैबर टाइगर्स, सवात हॉक्स, बड़ा टाइटंस, कोहाट नाइट्स, हजारा पैंथर्स, चारसदा ईगल्स और DI खान स्टालियंस की टीमों ने फाइनल मरहले में जगह बनाई थी। अकील खान ने नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया। इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में अकील खान ने मोहम्मद शुएब को 6-3, 1-6 और 6-2 से हरा दिया। लड़कियों का सिंगल्स टाइटल सारा महबूब ने हासिल किया। बॉयज अंडर 14 में आमिर मोहम्मद खान ने अब्दुल बासित के खिलाफ 7-5, 5-7 और 7-5 से कामयाबी हासिल की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।